सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। I'm a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. I'm involved in two massive developments in India, you probably know. Very successful, wonderful partners, very beautiful. And I must say, I became involved because I have great confidence, and I have great confidence in India. Incredible people and an incredible country. Our guest to our temple. So nice to meet you. Now I'm going to reach up here. And this is the welcoming. All right. We are decorating you. ये वीडियो है अमेरिका के स्टेट फ्लोरिडा की एक सिटी ओरलैंडो की, जहां पर स्थित एक भव्य हिंदू मंदिर में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक अपने पिता की जीत पर इस हिंदू मंदिर में पहुंचे और अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में ट्रंप के अच्छे भविष्य के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और पूजा अर्चना की। और फ्लोरिडा की सिटी ओरलैंडो में रहने वाले हिंदुओं के उज्जवल भविष्य के लिए एरिक ने विश्वास दिया कि वे अपने पिता की तरह अमेरिकन हिंदुओं के हमेशा साथ खड़े रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिनके नाम है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, बैरन ट्रंप और एरिक ट्रंप। और ट्रंप की 2 बेटियों के नाम है इवांका ट्रंप और टिफनी ट्रंप। और ट्रंप के इन 5 बच्चों में से सबसे छोटे हैं बैरन ट्रंप, जिनकी अभी की एज केवल 18 साल है और सबसे बड़े बेटे की एज 45 ईयर है। लेकिन यहाँ पर हम ट्रंप की फैमिली के बारे में बात नहीं करने आए हैं, बल्कि हम बात करने आए हैं कि कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप और इनकी पूरी फैमिली खुलेआम हिंदुओं के समर्थन में खड़े हैं। और यहाँ तक अभी तो ट्रंप के कैबिनेट में प्रो हिंदू सपोर्टर्स लीडर भी चुने गए हैं, जो कट्टरपंथियों को सीधा टारगेट करते हैं अपने स्पीच में। But I follow the energy. Marco, thank you, Marco. Good man. We have Vivek Ramaswamy. By the way, this guy has a hell of a mouthpiece. Do you want to hear him for about 2 minutes? Can you keep it down to 2 minutes? Come on, let's go. Get up here, Vivek. What a mouthpiece on him. Oh, boy. He's like a machine gun. Come on up here, Vivek. All right, now he's a great guy, great future. Please. I want you to give it up for the greatest president of the 21st century standing right here, Donald J. Trump. We had a secure border, a growing economy. People were living prosperous lives with crime going down in this country. We were on the brink of war with North Korea. What happened? We had no major conflicts around the world. तो ये है अमेरिका के नए वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है जेडी वेंस, जो प्रो हिंदू सपोर्टर्स हैं। और ये प्रो हिंदू सपोर्टर्स क्यों हैं, आपको इसके बारे में आगे पता चलेगा। तो इन्होंने कुछ ही दिन पहले अपने एक स्पीच में यूके में बढ़ते इस्लामिस्ट इमिग्रेंट्स पर ओपनली ये कह दिया था कि यूके में मुस्लिम की बढ़ती पॉपुलेशन से यूके में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उससे यूके दुनिया का पहला ऐसा इस्लामिक देश बन सकता है जिसके पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। The real threat to American democracy is that American voters keep on voting for less immigration and our politicians keep on rewarding us with more. That is the threat to American democracy. Look, the thing on immigration is that no one can avoid that it has made our societies poorer, less safe, less prosperous, and less advanced. If you look at, for example, the United Kingdom, if immigration, non-stop immigration, was the way to create wealth and prosperity and lower home prices, then London would be doing great. And I got to talking about, what is the first truly Islamist country that will get a nuclear weapon? And we were like, maybe it's Iran, maybe Pakistan already kind of counts. And then we sort of finally decided maybe it's actually the UK, since Labour just took over. जेडी वेंस ने ये बात यूके की रूलिंग कंजर्वेटिव पार्टी को टारगेट करने के लिए कही थी।
जो अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए यूके के क्रिश्चियन और हिंदुओं को सपोर्ट ना करके यूके में आए हुए इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स को ओपनली सपोर्ट देती है, जिसके कारण जेडी ने यूके गवर्नमेंट को ओपनली ये कहा था। लेकिन जेडी हिंदुओं को क्यों इतना समर्थन करते हैं, इसके पीछे का असली कारण क्या है? क्या ये अपने वोट बैंक के लिए ऐसा करते हैं या फिर इसके पीछे इनका कोई और ही पर्सनल स्ट्रॉन्ग रीजन है? तो बात कुछ ऐसी है कि जेडी वेंस ने एक भारतीय अमेरिकन हिंदू लड़की से लव मैरिज की हुई है, जिनका नाम है उषा वेंस। जेडी ने उषा के साथ लव मैरिज हिंदू धर्म के पारंपरिक रीति रिवाज और संस्कारों के अनुसार 7 फेरे लेकर की थी, जैसे कि आप इन फोटोज में देख सकते हो। और उषा वेंस अपने सनातन हिंदू धर्म पर बहुत ही ज्यादा गर्व करती हैं। वे अमेरिका में भी योग और आयुर्वेद को फॉलो करती हैं और जेडी के साथ अपने घर में डेली भगवान की पूजा करती हैं। इसलिए जेडी के 3 बच्चों में से एक का हिंदू नाम विवेक वेंस रखा गया है, जो इनकी पत्नी उषा के द्वारा रखा गया है। और जेडी ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि वे अब उषा के साथ सनातन के आध्यात्मिक जीवन में लीन होते जा रहे हैं और योग और आयुर्वेद के जरिए एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो जेडी अपनी भारतीय अमेरिकन हिंदू वाइफ के कारण ही हिंदुओं का पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन ट्रंप की सरकार में जेडी ही नहीं बल्कि विवेक रामास्वामी, कश्यप प्रमोद, जिनको कश पटेल भी कहा जाता है, और इनके साथ ही बॉबी जिंदल और तुलसी गबार्ड भी ट्रंप के इस 2.0 कैबिनेट में पूरी तरह से प्रो हिंदू समर्थक हैं, जो अब ट्रंप गवर्नमेंट में अपनी लीडरशिप देंगे, जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। और यही वो कारण है जिसके कारण सोशल मीडिया पर ट्रंप की ये हिंदू एआई इमेज बहुत ही ज्यादा वायरल हुई है। तो अमेरिकन मीडिया के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि विवेक रामास्वामी, जो ट्रंप के बहुत ही ज्यादा खास हैं, इनको ट्रंप गवर्नमेंट में मेजर गवर्नमेंट पोजीशन पर रखा जाएगा। Marco, thank you, Marco. Good man. We have Vivek Ramaswamy. By the way, this guy has a hell of a mouthpiece. Do you want to hear him for about 2 minutes? Can you keep it down to 2 minutes? Come on, let's go. Get up here, Vivek. What a mouthpiece on him. Oh, boy. He's like a machine gun. Come on up here, Vivek. कश्यप पटेल को अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA के डायरेक्टर की लीडरशिप दी जाएगी, जो काफी तगड़ी पोजीशन है अमेरिकन गवर्नमेंट में। और बॉबी जिंदल और तुलसी गबार्ड के लिए भी ऐसी ही मेजर पोजीशंस का अनुमान लगाया जा रहा है, जो अमेरिकन हिंदुओं और भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से हमारे वीडियोस देखते हैं, तो हमने स्पेशली आपके लिए इंस्पायरिंग साइंस बंगाली चैनल लॉन्च किया है, जिसपे आप ऐसी ही तगड़ी वीडियोस अब अपनी बंगाली लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।